آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ضلع پریشد کے 63 بلاک اور 126 سرکل کے لیے 7 فروری کو کی جائے گی پولنگ۔ رائے دہی کے لیے تمام تیاریاں مکمل۔ 18,73,053 ووٹرز کریں گے 830 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ۔ میئر اور ڈپٹی میئر عہدوں کے لیے بی جے پی اور شیو سینا شندے گروپ میں ہو گئی مفاہمت۔ میئر عہدے کے لیے سمیر راجورکر نے تو ڈپٹی میئر کے لیے راجندر جنجاڑ نے داخل کیے اپنے پرچہ نامزدگی۔ 10 فروری کو ہوگی پولنگ۔ شیو سینا شندے گروپ میں ڈپٹی میئر عہدے کے لیے امیدواری پر کچھ دیر کے لیے بڑھ گیا تھا تنازع۔ گروپ بندی ہوتا دیکھ مجلس اتحاد المسلمین بھی کود پڑی انتخابی میدان میں۔ اور AMC کے پریادرشنی اسکول میور بن میں جوش و خروش سے منعقد کیا گیا ڈیجیٹل پلس اور ریڈنگ فیئر۔ ایڈیشنل کمشنر کے ہاتھوں پروگرام کا شاندار افتتاح۔ طلباء نے لیا بڑھ چڑھ کر حصہ اور ثابت کر دیا کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ضلع پریشد اور پنچایت سمیتی کے انتخابات کی انتخابی مہم جمعرات کی شام ختم ہو چکی ہے، جبکہ ہفتے کے روز پورے ضلع میں ووٹنگ کا عمل انجام پائے گا۔ ضلع پریشد کے 63 اور پنچایت سمیتی کے 126 حلقوں کے لیے یہ انتخابات ہو رہے ہیں۔ ان انتخابات میں ضلع بھر سے مجموعی طور پر 830 امیدوار میدان میں ہیں۔ ووٹرز کی سہولت کے لیے 2282 پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں، جہاں صبح 7:30 بجے سے شام 5:30 بجے تک ووٹنگ ہوگی۔ ضلع میں کل ووٹرز کی تعداد 18,83,053 ہے، جن میں 9,79,000 مرد، 8,93,878 خواتین اور 21 تیسری جنس کے ووٹرز شامل ہیں۔ انتخابی عمل کو خوش اسلوبی سے انجام دینے کے لیے تقریباً 12,000 افسران اور ملازمین کی تعیناتی کی گئی ہے۔ دریں اثنا ان انتخابات کی ووٹوں کی گنتی پیر کے روز ہوگی اور نتائج پر سب کی نظریں مرکوز ہیں۔ ضلع پریشد اور پنچایت سمیتی انتخابات کے باعث ST بسوں کی بڑی تعداد انتخابی ڈیوٹی پر روانہ کر دی گئی ہے، جس سے عام مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ریاست میں ہونے والے ضلع پریشد اور پنچایت سمیتی انتخابات کے لیے ST مہا منڈل کی کل 244 بسیں انتخابی کام کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ اسی وجہ سے ناگپور، اکولا، بلڈھانا، جلگاؤں، کلبرگی اور سولاپور جیسے طویل فاصلے کے روٹس پر ST بس سروس 2 دن کے لیے منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ڈویژنل ٹریفک کنٹرولر سنتوش گھانے کے مطابق بسوں کی عدم دستیابی کے باعث کوئی متبادل انتظام نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے سینکڑوں مسافروں کو سفر میں شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے میئر عہدے کے لیے آج سے سسپینس ختم ہو گیا ہے۔ BJP اور شیو سینا نے مشترکہ پریس کانفرنس میں میئر اور ڈپٹی میئر کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ میونسپل کارپوریشن کے انتخابات BJP اور شیو سینا نے الگ الگ لڑے تھے، تاہم اقتدار کی تشکیل کے لیے اب دونوں ہی جماعتیں ایک ساتھ آ گئی ہیں۔ اس موقع پر وزیر اتل ساوے نے کہا کہ شہر کی مجموعی ترقی اور ہندوتوا کے نظریے کو مضبوط کرنے کے لیے BJP اور شیو سینا نے اتحاد کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اتحاد صرف اقتدار کے لیے نہیں، بلکہ اورنگ آباد شہر کی ترقی، بنیادی سہولتوں میں بہتری اور شہریان کے مسائل کے حل کے لیے کیا گیا ہے۔ میئر سمیر راجورکر اور ڈپٹی میئر راجندر جنجاڑ کی تقرری کے بعد اب شہر میں مستحکم قیادت کے تحت ترقیاتی کاموں کو رفتار ملنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ وہیں شیو سینا شندے گروپ کی جانب سے ڈپٹی میئر کے عہدے کے لیے 2 سینئر رہنماؤں نے نامزدگی فارم داخل کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے اور میونسپل کارپوریشن ہیڈ کوارٹر میں نامزدگی کا عمل جاری ہے۔ اسی دوران ڈپٹی میئر کے عہدے کو لے کر شیو سینا میں بڑی سیاسی سرگرمیاں دیکھنے میں آئیں۔ نامزدگی فارم داخل کیے جا رہے تھے کہ اچانک شیو سینا کے ایک MLA، جو اس معاملے کے کوآرڈینیٹر اور امیدوار بھی بتائے جا رہے ہیں، اپنے کارکنان کے ہمراہ میونسپل ہیڈ کوارٹر سے باہر روانہ ہو گئے، جس سے سیاسی حلقوں میں مختلف قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ भारतीय जनता पार्टीचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, राज्याचे मंत्री आणि या निवडणुकीचे प्रमुख अतुलजी सावे, डॉक्टर बाबूजी कराड साहेब, संजयजी केलेकर आणि जिल्हाध्यक्ष किशोर शितोळे साहेब यांच्या आणि भारतीय जनता पार्टीच्या आदेशानं मी आज माझा महापौराचा उमेदवारी अर्ज दाखल केला। निश्चित या महाराष्ट्र राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि
उपमुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेब हे आमचे मुख्य नेते, त्यांनी या ठिकाणी उपमुख्यमंत्र्यांची संधी दिलेली आणि त्यांच्या आदेशानुसार आज या ठिकाणी उमेदवारी अर्ज मी भरलेला आहे आणि निश्चित मी आमच्या मीडियाच्या माध्यमातून त्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो. त्या अपेक्षा या शहरवासियांना तरी आता या महायुतीकडून आहेत, त्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी सर्वांना आम्ही काम करतो. पालकमंत्री साहेबांच्या शहरामध्ये जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका चालू आहे आणि त्यांनी त्यामध्ये वेळ दिला त्यामुळे या ठिकाणी जो जेव्हा ते अर्ज जोडलेले परिषदा शिक्षण जोडले आणि अर्ज तोपर्यंत उमेदवारी निश्चित झालेली नव्हती. शिवसेना हा पक्ष आदेशावर चालणार, जो आदेश तक्रार करण्याची गरजच नाहीये. व्हीप आता जारी होणार आहे आणि माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी दिलेला निर्णय हा अंतिम निर्णय. बीजेपी और शिवसेना की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िले के राब्ता वज़ीर बराए समाजी इंसाफ संजय शिरसाट की गैर मौजूदगी ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों का तनाज़ा आज हल हो गया, मगर इसी के साथ शिवसेना में फूट की क़ियास आराइयाँ भी तेज़ हो गई हैं। बीजेपी ने डिप्टी मेयर का ओहदा शिवसेना को दिया है और राजेंद्र जंजाड़ के नाम का ऐलान भी कर दिया गया, लेकिन इतनी अहम मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर बराए समाजी इंसाफ संजय शिरसाट की गैर हाज़िरी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक संजय शिरसाट चंद कारपोरेटरों के साथ मुंबई में वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से मुलाकात के लिए गए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में शहर की सियासत किस रुख पर जाती है। नाज़रीन, डिप्टी मेयर ओहदे की इंतखाबी सरगर्मियों के दौरान शिवसेना में अचानक सियासी हलचल देखने में आई, जहां नामजदगी के वक्त पेश आने वाले एक वाक़े ने पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात की बहस को जन्म दे दिया। किसको उम्मीदवार बनाया जाए और किसको नज़रअंदाज किया जाए, इस पर मकामी सतह से लेकर आला क़यादत तक बेचैनी पाई जा रही है। कुछ रहनुमाओं की जानिब से फैसला साजी में एतमाद न लिए जाने पर नाराज़गी की बातें भी सामने आ रही हैं। उम्मीदवार के इंतखाब पर इख्तलाफ, अंदरूनी तालमेल की कमी या आला सतही फैसलों पर अदम इत्तेफाक को इस सूरत हाल की मुमकिना वजह करार दिया जा रहा है। ताहम इस पूरे मामले पर शिवसेना की जानिब से अब तक कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने नहीं आया, जबकि नायब मेयर ओहदे के इंतखाब पर इन सियासी पेशरफ्तों के असरात क्या होंगे, इस पर सब की नज़रें जमी हुई हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सियासत में आज अहम पेशरफ्त देखने को मिली। MIM पार्टी की जानिब से मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों के लिए नामजदगियां दाखिल की गई हैं। वाज़ेह हो कि MIM पार्टी के उम्मीदवार अशोक हुराड़े ने मेयर ओहदे के लिए, जबकि मोहम्मद वसीम अहमद ने डिप्टी मेयर ओहदे के लिए अपना नामजदगी फार्म दाखिल किया है। नामजदगी के मौके पर पार्टी के मुतादिद मुंतखब अवामी नुमाइंदे, ओहदेदारान और कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। पार्टी की जानिब से इत्तेहाद, ताकत और एतमाद का मुजाहरा किया गया, जिसके बाइस म्यूनसिपल सियासत में सरगर्मियाँ मज़ीद तेज़ हो गई हैं। या ठिकाणी ही मातृभूमी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची पवित्र भूमी असल्यामुळे आणि बाबासाहेबांनी ह्या औरंगाबाद शहरामध्ये आपले अनेक कॉलनी या ठिकाणी स्थापन केलेले, बाबासाहेबांच्या या ठिकाणी या जमिनीला पाय लागलेले आहे, ही पवित्र भूमी मानली जाते। म्हणून माझ्या तमाम दलित बांधवांना विनंती आहे, संपूर्ण पक्षातल्या या ठिकाणी जात पात धर्म हे सर्व बाजूला ठेवून आपले बाबासाहेबांचे विचार घेऊन या ठिकाणी MIM पक्षाचे जे आमचे अशोक भाऊ हिवराळे यांना जे आज महापौरपदी MIM पक्षाने जी त्यांची निवड करण्यात आली, तर माझं एकच इच्छा आहे सर्व पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना का सर्व सोडा, आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे संविधान आहे, संविधाना माध्यमातून या ठिकाणी औरंगाबाद शहराचा सर्वात प्रथम हा दलित बौद्ध समाजाचा व्यक्ती या ठिकाणी महापौर होत आहे। तर माझी अशी नम्र विनंती सर्व बौद्ध नगरसेवकांना की या ठिकाणी अशोक भाऊ हिवराळे यांच्या पाठीशी उभा राहा आणि एक नवा इतिहास या ठिकाणी औरंगाबाद शहरामध्ये घडवा। आपल्या माध्यमातून या शहरामध्ये एक 22 SC कॅन्डिडेट निवडून आलेले आहेत वेगवेगळ्या पक्षातून, परंतु मला एक दलिताला इथं MIMनं सपोर्ट करून तिकीट देऊन एक मान उंचावलेला आहे। त्या बाबतीत मी बाकीच्या सर्व पार्टीच्या दलित पुढाऱ्यांना, दलित नगरसेवकांना आवाहन करतो की त्यांनी मला
मला मतदान करावं आणि महापौर पदासाठी मला निवडून द्यावं. आप लोगों के पास मैजिक फिगर नहीं है, फिर भी जीत की कितनी आशा है आपको? मैजिक फिगर हमारे पास है. बीजेपी को छोड़ के बीजेपी के 57 सीट हो रहे हैं और हम लोग सब एक जगह जुड़ गए तो 58 सीट हो रहे हैं. ये मॅजिक फिगर आहे. म्हणजे बीजेपीला सोडून सगळ्यांनी एका जागी कधी आले तर 58 म्हणतात आमचे. शिवसेना उभाठा वंचित हे तुमच्यासोबत येईल असं तुम्हाला वाटतं आणि कारण काय? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराला पुढे घेऊन एक सर्व जातीच्या नगरसेवकांनी एक दलित पुढारी दलित नगर महापौर बनतोय ह्या उद्देशाने सर्व पक्षाच्या सर्व नगरसेवकांनी एका जागी येऊन मला मतदान करावं हीच माझी त्यांना विनंती आहे. या भारतामध्ये फक्त एमआयएमच एक पक्ष असा आहे की सर्व दुंदुभयाला दलिताला सोबत घेऊन चालणारा आहे आणि त्यामध्ये असं साहेबांनी आणि जलील साहेबांनी मला उमेदवारी देऊन एक मलाच नाही पूर्ण महाराष्ट्रातल्या दलित समाजाचा मान उंचावलेले आहे. नांदेड़ के साबिक वजीर आला बीजेपी सीनियर रहनुमा और राज्यसभा के रुकन अशोक चौहान ने मुख्तलिफ सियासी मामलात पर मीडिया से गुफ्तगू की. भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा रुकन और साबिक वजीर आला अशोक चौहान ने अजीत पवार से मुलाकात पर कहा कि हम दोनों कुछ अरसा काबीना में साथ रहे हैं, इसीलिए हमारे ताल्लुकात हमेशा खुशगवार रहे और कभी इख्तिलाफात नहीं हुए. उन्होंने कहा कि एक करीबी साथी के बिछड़ने का हमें गहरा दुख है. सुनीता पवार की हल्फ बर्दारी से मुतालिक उन्होंने कहा कि ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है और किसी अफसोसनाक वाक़े के बाद सियासत करना मुनासिब नहीं. हल्फ बर्दारी के वक्त पर सवाल उठाने वालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हर मजहब और ख़ानदान की अपनी रसूमात होती हैं. कोई 3 दिन मानता है तो कोई 13 दिन, ये ख़ानदानी फ़ैसला होता है. इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात से महाराष्ट्र की सकाफ़त को नुकसान पहुँचाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि गम की हालत में इस तरह की बातें करना गलत और नामुनासिब है. किसी साजिश के शुबे पर अशोक चौहान ने कहा कि जाँच के बाद हकीकत सामने आ जाएगी. ठाकरे और पवार ख़ानदान के एक साथ आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी भी सियासी जमात का एक साथ आना या अलग रहना उनका अपना फैसला है, जो उन्हें मुनासिब लगे वही करेंगे. त्यांना म्हटलं थांबा घाई काय, ते म्हणणं मी जागची गडबड आहे, हात भिडून चालल्या गेले. ही माहिती त्यांची शेवटचं असतं आंदोलन भेट होती. त्यामुळे त्यांचे माहिती आम्ही एकाच मंत्रिमंडळात होतो, आम्ही एखादं माझ्या मंत्रिमंडळात ते होते काही काळ. त्यामुळे त्यांची माझे संबंध निश्चित सर्व काही जिव्हाळी संबंध राहिलेत. कुठलाही आमच्यामध्ये मतभेदाचं कारण नव्हतं आणि अतिशय चांगले संबंध होते. त्यामुळे आपला एक सहकारी आज निघून गेला आमच्यातून, दुःख आम्हाला आहे. साहेब, आता त्यानंतर मोठं राजकारण पाहायला मिळते. शपथविधी झाला, अनेक जण टीका करत आहेत. तटकरे आणि पटेल यांना विलन ठरवण्यात येते सोशल मीडिया. मला याच्यावर काही कॉमेंट करायचं नाही आहे. हा त्यांच्या पक्षाचा अंतर्गत प्रश्न आहे. तो तुम्हाला वाटतं की एका दुःखद घटनेनंतर अशा प्रकारचं राजकारण करणं उचित नाही असं माझं मत आहे. शपथविधी झाला तो योग्य झालं वाटतंय तुम्हाला? मला याच्यामध्ये काय अयोग्य काय अयोग्य काय, प्रत्येकाच्या धार्मिक विधीच्या काही प्रक्रिया असतात, त्याला काही कालावधी असतो. काही 3 दिवस दुखवटा मानतात, काही 13 दिवस मानतात. प्रत्येकाचा कौटुंबिक निर्णय असतो तो. त्यामुळे ह्याच्यात मला काय ते बोलणं उचित नाही. जे काही आरोप प्रत्यारोप होतात एकंदर महाराष्ट्राची राजकीय जी संस्कृती आहे त्याला कुठेतरी डागाळण्याचा प्रयत्न होतोय. उगाच काहीतरी आपण कोणावरही एखादी कुटुंबाचं यावेळेस दुःखामध्ये असताना अशा प्रकारचे आरोप प्रत्यारोप होणं हे चुकीचं आहे, न शोभणारी वाद. घातपात झाला असं देखील चौकशीमध्ये काय निष्पन्न होईल त्यावर अवलंबून राहणार आहे. नेमकं काय घडलं आहे हे कोणीच काय सांगू अथॉरिटीने किंवा नक्की असं कोणी सांगू शकत नाही. चौकशी अंती जे स्पष्ट होईल त्यावरच सर्व अवलंबून राहील. साहेब, ठाकरे कुटुंब एकत्र आलं, पवार कुटुंबाने एकत्र यायला पाहिजे का? असं आहे की प्रत्येक राजकीय पक्षाला एकत्र यायचं का वेगळं व्हायचं हा त्यांच्या पक्षाचा राजकीय निर्णय आहे. त्यांना योग्य पद्धतीने करावं. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एग्जामिनेशन के डायरेक्टर डॉक्टर BN डोले ने ऐलान किया है कि बाकी तमाम इम्तहानात के नताइज 30 दिन के अंदर जारी कर दिए जाएंगे. तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की जानिब से 126 मुख्तलिफ कोर्सेज़ के इम्तहानात 29 दिसंबर 2025 तक मुनक़िद किए गए थे. ताहम अब तक 66 कोर्सेज़ के इम्तहानात के नताइज यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी नहीं किए जा सके.
इसी सिलसिले में इम्तिहान और जांच शोबे के डायरेक्टर डॉक्टर BN डोले ने बताया कि मकामी खुद इख्तियारी इदारों के इंतखाबात, जिनमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ज़िला परिषद और पंचायत समिति के इंतखाबात शामिल हैं, की वजह से यूनिवर्सिटी के तकरीबन 80% मुलाजिमीन की ड्यूटियाँ इंतखाबी अमल में लगाई गई थीं। इसके अलावा बड़ी तादाद में सरकारी तातीलात आने के बाइस काम के दिन कम हो गए, जिसका बोझ इम्तिहानी शोबे पर पड़ा। ताहम इसके बावजूद यूनिवर्सिटी की जानिब से 60 कोर्सेज के इम्तिहानात के नताइज पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जबकि बाकी 66 कोर्सेज के नताइज जल्द अज जल्द 1 माह के अंदर जारी कर दिए जाएंगे। डॉक्टर मजहर अहमद फारूकी सर की सरपरस्ती में जारी NSS खुसूसी कैंप के चौथे दिन मुख्तलिफ तालीमी और समाजी सरगर्मियों का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और रज़ाकारों ने भरपूर शिरकत की। डॉक्टर मजहर अहमद फारूकी सर की सरपरस्ती में NSS यूनिट ने एक बामकसद लेक्चर का एहतमाम किया, जिसमें प्रोफेसर आरिफ पठान वाइस प्रिंसिपल ने कौम की तामीर में नौजवानों का किरदार और उनकी जिम्मेदारियाँ के मौजू पर तलबा की रहनुमाई की। उन्होंने कहा कि NSS कैंप अमली तजुर्बात के ज़रिए क़ियादत, टीम वर्क, समाजी शऊर और शहरी जिम्मेदारियों को फ़रोग़ देने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। दूसरे सेशन में शोबे कॉमर्स और मैनेजमेंट साइंस की प्रोफेसर अपर्णा सराफ ने गाँव वालों और तलबा के लिए माली मनसूबाबंदी पर मालूमाती खिताब किया और बचत और सरमायाकारी की अहमियत को वाज़े किया। फाइनेंशियल लिटरेसी क्लब मदराक्षर के तहत मोहतरमा शेख ज़रका ने ज़रूरियात और ख्वाहिशात पर एक दिलचस्प सरगर्मी करवाई, जिसे ज़बरदस्त पजीराई मिली। इस प्रोग्राम में 120 तलबा ने पुरजोशी के साथ शिरकत की। इसके अलावा NSS रज़ाकारों ने गोपाल चावड़ी, रसूलपुरे में वोटर आगाही रैली निकाली। तकरीब के दौरान तलबा में नोटबुक्स और कलम तकसीम किए गए, जबकि खेलों की सरगर्मियाँ भी मुनाकिद हुईं। कैंप के दौरान रज़ाकारों ने सफाई मुहिम में हिस्सा लिया, स्वच्छता ही खिदमत या स्वच्छता ही सेवा के तहत हल्फ लिया और गाँव में बेदारी रैली निकाली, जिसके ज़रिए सफाई और सेहत का पैगाम दिया गया। रज़ाकारों ने तलबा के लिए खाना तैयार करके नज़्म ज़ब्त के साथ तकसीम किया, जो खिदमत और ताउन की बेहतरीन मिसाल रही। इस मौके पर स्कूल के पौधों पर रंगो रोगन किया गया, जबकि गाँव वालों के लिए से नो टू प्लास्टिक के उन्वान से बेदारी प्रोग्राम भी मुनक़िद किया गया। वहीं मौलाना आज़ाद कॉलेज की जानिब से गाँव के ज़िला परिषद स्कूल को 30 बेंचों का अतिया दिया गया, ताकि तालीमी सहूलतों में इजाफा हो। प्रोग्राम के अख्ताम पर प्रोफेसर प्रशांत नितिनकर ने इजहार तशक्कुर पेश किया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मयूरबन कॉलोनी में वाक़े प्रियदर्शनी विद्यालय में डिजिटल प्लस और रीडिंग फेयर का जोश व खरोश के साथ इफ्तिताह किया गया। एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल ने तलबा के एतमाद के साथ कंप्यूटर के इस्तेमाल पर खुशी का इजहार किया। ये नुमाइश 6 फरवरी को सब के लिए खुली रहेगी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मरकज़ी प्राइमरी व सेकेंडरी प्रियदर्शनी स्कूल में DMART फाउंडेशन के इश्तराक से डिजिटल लिटरेसी और रीडिंग प्रोग्राम के तहत DMF एनुअल शोकेस 2025-26 का कामयाब और काबिल सताइश इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल ने फीता काट कर किया। इस मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सीनियर अफसरान, तालीमी महकमे के नुमाइंदे, DMART फाउंडेशन के ओहदेदारान, असातिज़ा और बड़ी तादाद में वालिदैन मौजूद थे। तकरीब में तलबा की डिजिटल और मुतालिक की सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ तालीमी स्टॉल्स लगाए गए। डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, इंटरनेट स्क्रैच पेंट और दीगर मौज़ूआत पर मबनी सरगर्मियाँ पेश की गईं, जिनके ज़रिए तलबा को कंप्यूटर के अमली इस्तेमाल का तजुर्बा हासिल हुआ। रीडिंग प्रोग्राम के तहत रीडिंग लीडर, बुक काउंटर, पपेट शो और दीगर सरगर्मियों के ज़रिए बच्चों में मुताले की दिलचस्पी बढ़ाने पर जोर दिया गया। तलबा ने अपने इल्म, हुनर और तख्लीकी सलाहियतों का एतमाद के साथ मुजाहरा किया, जिसे अफसरान और वालिदैन ने सराहा। प्रोग्राम की कामयाबी में DMART फाउंडेशन के अमले, असातिज़ा और वालिदैन का ताउन रहा। शहर के सिडको N7 में वाक़े संत तुकाराम प्राइमरी स्कूल में सेहत से मुताल्लिक़ मुशावरत और TB से आगाही पर मुश्तमिल वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा को सेहत और सफाई के बारे में अहम रहनुमाई दी गई। ज्ञानदीप शिक्षण संस्था के ज़ेर इंतज़ाम संत तुकाराम प्राइमरी स्कूल डॉक्टर अम्बेडकर नगर सिडको N7 औरंगाबाद में आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सेहत मरकज़ मिस्रवाड़ी के ताउन से सेहत मुशावरती प्रोग्राम और TB से मुताल्लिक़ रहनुमाई वर्कशॉप मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत इदारे के बानी सदर व प्रिंसिपल प्रोफेसर प्रकाश सोनौने ने की, जबकि मेहमान खुसूसी के तौर पर इदारे की सेक्रेटरी संगीता ताई खिल्लारे और संदीप सोनौने मौजूद थे। वर्कशॉप के दौरान हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने तलबा को TB, उमूमी सेहत, बच्चियों की माहवारी, ज़ाती सफाई और हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम की और सेहत से मुताल्लिक़ अहद भी दिलाया।
तलबा ने इस रहनुमाई प्रोग्राम में भरपूर दिलचस्पी ली। प्रोग्राम की कामयाबी के लिए स्कूल इंतज़ामिया, असातिज़ा और माविन अमले ने खुसूसी मेहनत की। आखिर में स्कूल के प्रिंसिपल संदीप सोनौने ने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, तिब्बी अमले और असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। औरंगाबाद में वाक़े विट्स होटल की नीलामी से जुड़ा मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस मुतनाज़ा नीलामी की जांच अब ज़िलाई सतह से हटकर आला सतह पर की जाएगी, जिसके लिए डिविजनल कमिश्नर की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई है। शहर के रेलवे स्टेशन रोड पर वाक़े विट्स होटल और उससे मुल्हिका खुली ज़मीन की मुतनाज़ा नीलामी के मामले की जांच अब डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर की सदारत में होगी। इससे कबल ये जांच ज़िला कलेक्टर को सौंपी गई थी। ताहम मामले की संगीनी को देखते हुए अब 8 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है। अपोजिशन जमातों ने इल्ज़ाम आयद किया था कि नीलामी के अमल में संगीन बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। बताया गया है कि तकरीबन 150 करोड़ रुपये की बाज़ारी कीमत वाली इस जायदाद को महज 64 करोड़ रुपये में फ़रोख्त किया गया, जिस पर कानून साज असम्बली में सवाल उठाए गए थे। इसी वजह से ये पूरा मामला शुकूक व शुबहात के घेरे में आ गया है। मज़ीद तनाज़ा उस वक्त खड़ा हुआ जब ये बात सामने आई कि इस नीलामी में वज़ीर बराए समाजी इंसाफ संजय शिरसाट के बेटे की कंपनी ने भी हिस्सा लिया था। अब तश्कील दी गई 8 रुकनी कमेटी नीलामी के पूरे अमल, जायदाद की कीमत के तयन, टेंडर की शराइत और अहलियत के मेयार का तफसीली जायज़ा लेगी। इस जांच के नताइज पर सियासी हलकों समेत अवाम की भी गहरी नज़र बनी हुई है। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में तनाज़े के बाद अब औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में मुबैना गैरकानूनी कारकर्दगी का मामला सामने आया है, जिस पर पुराने रजिस्टर्ड अराकीन ने चैरिटी कमिश्नर से जांच की मांग की है। पुराने रजिस्टर्ड अराकीन का इल्ज़ाम है कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में तकरीबन 20 बरसों से गैरकानूनी तरीके से इंतज़ाम चलाया जा रहा है। उनके मुताबिक गैरकानूनी ट्रस्टी रजिस्ट्रेशन, क़वायद के ख़िलाफ़ मेंबरशिप और इंतखाबात के बग़ैर तंजीम चलाना संगीन खिलाफ वर्जी है। अराकीन ने बताया कि इस दौरान कुछ ट्रस्टियों ने मुखालिफत की थी। ताहम तकनीकी बुनियादों पर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना लेकर मौजूदा डिफेक्टिव बॉडी इंतखाबात के बगैर तंजीम चलाई जा रही है, जबकि एग्जीक्यूटिव कमेटी की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। मज़ीद कहा गया कि चैरिटी कमिश्नर के पास किसी ताज़ा इंदराज के बगैर ही इंतज़ाम जारी है। इसी बिना पर मुतालबा किया गया है कि रजिस्टर्ड ताहयात अराकीन में से नई एग्जीक्यूटिव कमेटी मुंतखब की जाए या मुंतज़िम मुकर्रर किया जाए और मौजूदा ट्रस्टियों के माली मामलात की जाँच की जाए। किरण जोशी और उनके साथियों का कहना है कि ज़िला क्रिकेट एसोसिएशन का मैदान रजिस्टर्ड ट्रस्टियों या खिलाड़ियों के हवाले किया जाए और इंतखाबात तक किसी को तंजीम का कंट्रोल न दिया जाए। वाज़ेह हो कि एक तरफ महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का मामला अदालत में है, तो दूसरी जानिब ये वाक़या ज़िला डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट के नज़्म व नुस्ख़ पर संजीदा सवालात खड़ा कर रहा है। अब सबकी नज़रें चैरिटी कमिश्नर के फैसले पर हैं। औरंगाबाद जिल्हा क्रिकेट संघटनेतर्फे ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतली। आपण सर्व इथं आलात त्याबद्दल धन्यवाद। थोडक्यात ही प्रेस कॉन्फरन्स बोलवण्याचा उद्देश असा आहे की कित्येक वर्षापासून ही संघटना कार्यरत नाहीये म्हणजे खेळाडूंसाठी तिचा उपयोग होत नाहीये, कारण 2009 नंतर ह्या संघटनेत इलेक्शन झालेलेच नाहीये आणि आम्ही इथं जे हजर आहोत तेही आज रेकॉर्डवर आहोत चॅरिटी कमिशनरच्या जॉईंट सेक्रेटरी आणि मेंबर म्हणून। आणि बाकीची जी कार्यकारिणी होती 11 पैकी 4 जण जिवंत आहेत, बाकी गेलेले आहेत। आणि आज मितीला ही जी काही बॉडी सो कॉल्ड बॉडी आहे आणि जी तुम्हाला माहिती आहे तीच तिथं ग्राउंडचा कब्जा आहे, सगळे व्यवहार त्यांच्या हातात आहे, पण खेळाडूंना तिथं मज्जाव आहे। तर आज आम्ही जी ही प्रेस कॉन्फरन्स बोलवलेली आहे आणि जे काही ह्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये आम्ही तुम्हाला प्रेस नोट दिली आहे त्याची नोंद ही चॅरिटी कमिशनरमध्ये आम्ही केलेली आहे आणि पुढे ती MCA कडे पण देणार आहोत, कारण ती अपेक्स बॉडी आहे, त्यांच्याकडे देणार आहोत। औरंगाबादच्या क्रीडा क्षेत्रासाठी त्यावेळेस औरंगाबाद जिल्ह्यात स्वतःचं ग्राउंड असलेल्या महाराष्ट्रामध्ये एकमेव मी 89-86 ची गोष्ट करतोय। संभाजीनगर हे आता जे ग्राउंड आहे ते पहिलं ग्राउंड होतं महाराष्ट्रात आणि MCA ने नंतर ग्राउंड घेतले, नाही तर कॉर्पोरेशनच्या ग्राउंडवरच नेहरू स्टेडियमला मॅचेस व्हायच्या। तर आता ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचा खेळाडूंसाठी उपयोग व्हावा म्हणून आज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आहे। आणि माझी आपल्या सर्वांना विनंती आहे की आपण जे काही प्रश्न असोसिएशन बद्दल विचारायचे असेल तर आता जे पदाधिकारी आहेत
जे स्वतःला पदाधिकारी म्हणतात त्यांच्याकडून ह्या प्रश्नाची उत्तरं घ्या, आम्ही जे म्हटलेलं आहे, आणि याच्यात जर काही चूक असेल तर परत आम्ही जाहीर सहीनिशी आम्ही माफी मागू. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला परिषद के 63 ब्लॉक और 126 सर्कल के लिए 7 फरवरी को की जाएगी पोलिंग। रायदही के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। 18,73,053 वोटर्स करेंगे 830 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। मेयर और डिप्टी मेयर ओहदों के लिए बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप में हो गई मफाहमत। मेयर ओहदे के लिए समीर राजूरकर ने तो डिप्टी मेयर के लिए राजेंद्र जंजाड़ ने दाखिल किए अपने पर्चे नामजदगी। 10 फरवरी को होगी पोलिंग। शिवसेना शिंदे ग्रुप में डिप्टी मेयर ओहदे के लिए उम्मीदवारी पर कुछ देर के लिए बढ़ गया था तनाज़ा। ग्रुप बंदी होता देख मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी कूद पड़ी इंतखाबी मैदान में। और एएमसी के प्रियदर्शनी स्कूल मयूरबन में जोशो खरोश से मुनक़िद किया गया डिजिटल प्लस और रीडिंग फेयर। एडिशनल कमिश्नर के हाथों प्रोग्राम का शानदार इफ्तिताह। तलबा ने लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा और साबित कर दिया कि हम भी किसी से कम नहीं। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।